Hello everyone, once again welcome back. Today's we have the topic nervous tissue and its function. Alright, so let's begin. So nervous tissue is the specialized tissue critical for coordinating and controlling body's function. It enables communication within the body by transmitting electrical signal. Okay, right. So nervous tissue क्या होता है? Nervous tissue is a specialized tissue. This is the specialized tissue. This is the critical. This is the responsible for coordinating and controlling body's function, body's essential function, controlling function. It enable communication within the body by controlling electrical signal, right? So it is the responsible for communicating, for transmitting electrical signal, electrical response messages by the one neurons to another neurons, one body part to one cell to another cell, right? So this is the responsible for the coordinating and controlling body's function, enable the communication within the body, within the organs or glands to the central nervous system, right? It is the responsible for convey the message information. Okay, so nervous tissue is the nervous tissue function of the nervous tissue. Nervous tissue consists of the two primary cell type, right? This is the consist of two primary cell type. First is the neurons. These are the functional unit responsible for the transmitting signal, right? Neurons are the functional unit. These are the responsible for transmitting signals. Now neuralgia or glial cell, these provide support, protection and maintenance of neurons, right? This is the responsible for provide support, protection and maintenance for neurons, right? Neuralgia is responsible for provide support, protection, and maintenance of the neurons. Now, function of the neurons, function the sensory input. First function is the sensory input. They detect the change between internal or external environment, right? बॉडीज के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, लाइक अभी समर का सीजन है, जैसे आप धूप में निकलते हैं तो बॉडी के जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर आपके बॉर्म को टेम्परेचर हाई है उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, राइट? तो दिस इज द सेंसरी रिसेप्टर की एक्सटर्नल आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, वट एवर हॉट है कोल्ड है. देन इंटरगेशन, एंट्री इंटीग्रेशन मीन्स की प्रोसेस करना, उस चीज को प्रोसेस करना, इंटरप्ट करना, राइट? सो प्रोसेस एंड इंटरप्रेट, नॉट इंटरप्ट, इंटरप्रेट सेंसरी डेटा इन द कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो आपका सीएनएस होता है उसको क्या करना, उसको प्रोसीड करना, डेटा को आपको इंटरप्रेट करना. आफ्टर इंटरप्रिटेशन का जो एक्शन होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं मोटर आउटपुट, राइट? मोटर आउटपुट इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीएनएस. अब सीएनएस से जो भी आपका एक्शन आया, एक्शन पोटेंशियल, जो भी आपका मोटर रिस्पॉन्स आया, वो आपके मसल्स और ग्लैंड को रिसीव होता है और उसके अकॉर्डिंग वो वैसा एक्ट करना शुरू करती है, राइट? I hope you got it. Next one is the structure. Typical neurons की structure कुछ इस तरीके से होती है जिसमें कि आपका दिस इज द न्यूरॉन, जिसमें आपकी जो लास्ट में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द डेंड्राइट्स होते हैं. देन आपका न्यूक्लियस होता है मिड में, एंड सेल बॉडीज होती है जो साइटोसोमा या सेल बॉडी जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है सराउंडिंग द न्यूक्लियस. देन ये आगे एक्सटेंड करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन. एक्सोन के बाद आपका स्पंज सेल्स होते हैं और बीच में जो सीट इसको जो कवर करती है, इंसुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है, दिस इज द माइलिन सीट. एंड माइलिन सीट दो बिटवीन द सिस्वन सेल के बीच में जो गैप होता है जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर. और फाइनली इसमें होता है एक्सोनल टर्मिनल, है ना, टर्मिनल डेंड्रॉइड्स, टर्मिनल एक्सोन्स, राइट? So this is the part, this is the structure of the typical neurons. Now what is the neurons? Now we are talk about the neurons. Neurons are the specialized cell for the signal transmitter. These are the specialized cell, these are responsible for the signal transmission. Key component include, right, ये आपका क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कन्वे कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब सेल बॉडी जो कि सोमा, जो कि अभी हमने जस्ट देखा, दिस कंटेन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. में क्या होता है आपका न्यूक्लियस का एंड साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है. दिस इज द इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस. ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आपका महत्वपूर्ण होता है, इसेंशियल होता है. अगला है आपका डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या होते हैं, हियर इज द डेंड्राइट्स. You can see thread like terminal structure, this is the dendrites.
dendrites branched extends from the received signal to another cell. ये क्या होती है, एक आपकी टर्मिनल ब्रांच होती है जो कि सिग्नल को रिसीव करती है आपके अनदर सेल से, राइट, अनदर सेल से जो भी सिग्नल इंफॉर्मेशन आ रही उसको कैच करना, उसको रिसीव करना। नेक्स्ट आपका एक्सोन, एक्सोन क्या होता है, branch sorry axon, a single long extension that transmit impulse to other neurons, muscles or gland, right? So this is the single extension, this is the single long extension responsible for the transmit impulse to other neurons, muscles or gland. Okay, so एक से जो another आपका न्यूरॉन्स होता है उनको आपका मैसेज को और ग्लैंड मसल्स को मैसेज को इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेप्स। सो व्हाट इज द सिनेप्स? Synapse is the junction where the neurotransmitter facilitates signal exchange between the cells, right? तो सिनेप्स बहुत जगह होती है जहाँ पर आपके न्यूरोट्रांसमिट है वो परमिट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं आपके सिग्नल को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन टू सेल के बीच। इस पार्ट को हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स इज द जंक्शन पॉइंट वेयर द न्यूरोट्रांसमिटर फैसिलिटेट सिग्नल exchange between cells, right? Understood? Okay, next is the type of neurons. Type of neurons, here are the three type of neuron, and first is the sensory neuron. Sensory neuron is responsible for carry signal from the sensory organ. सेंसरी ऑर्गन से ये सिग्नल को कैरी करते हैं कहाँ तक, आपके सीएनएस तक, राइट? जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन लाइक आपका स्किन, आपका टंग, आपका नोज, हेयर, आईज ना, तो इससे जो भी आपका सेंसेशन डिटेक्ट होता है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करते हैं और उसको आपके सीएनएस तक फॉरवर्ड करते हैं, उसे पहुंचाने का काम करते हैं। देन मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपका सिग्नल को सेंड करते हैं, सिग्नल को आपको सेंड करते हैं फ्रॉम द सीएनएस से आपके मसल तक, राइट? जैसे कि आपको किसी ने पिन चुबाया या आपने गर्म ऑब्जेक्ट पर आपकी फिंगर टच की, आपका के जो सिग्नल है वो आपका सेंसरी रिसेप्टर ने कैरी किया और उसको आपके ऑर्गन से आपका कहाँ पर, आपके पीएनएस से आपके सीएनएस में ट्रांसफर हुआ, सीएनएस से आपका सिग्नल को प्रोसीड किया इंटरन्यूरॉन के थ्रू और वापस उसने आपको सिग्नल भेजा है कि आपको वहां से हाथ को इमीडिएटली हटाना है। तो दिस इज द मोटर न्यूरॉन्स, राइट? एंड इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंटरन्यूरॉन्स प्रोसेस एंड रिलाई इंफॉर्मेशन विद इन द सीएनएस। सीएनएस के अंदर ही जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको रिलाई करने का, कन्वे करने का इसका रोल होता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट द न्यूरोल्सिया। न्यूरोल्सिया आर द नॉन न्यूरोनल सेल दैट सपोर्ट, neuralgia are non-neuronal cell that support functioning of neurons, right? So this is the non-neuronal cell होते हैं जो कि आपके support cell that support करते हैं and functioning of the neurons के लिए, and they play role like, इनका जो role play करते हैं जैसे insulating, nourishing and protecting neurons, right? इंसुलेट करना, नरिशिंग करना एंड प्रोटेक्टिंग करना न्यूरॉन्स को। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूरalgia. Now neuralgia, when neuralgia of the central nervous system, neuralgia या neuralgia of the central nervous system, CNS. After we can see, after we will see PNS. First now we are see the neuralgia of the CNS. तो फर्स्ट इज द एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट का रोल होता है मेंटेन द ब्लड बैरियर विद इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर आपका जो ब्लड बैरियर होता है आपके ब्रेन और ब्लड का, उसको मेंटेन करना, प्रोवाइड करना आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अनदर रोल होता है रेगुलेट आयरन एंड न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन। जो भी आपका आयरन है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट है, उनके कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना। अगला है माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया जैसे कि हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, आपके ल्यूकोसाइट होते हैं, मेस्ट सेल होते हैं। सिमिलरली ये आपके ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर आपका इम्यून सिस्टम ऐसे इम्यून सेल के रूप में वर्क करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से फाइट करने के लिए, इस वेल आपकी जो भी डेब्रिस, जो भी आपकी वेस्ट चीजें होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस माइलिन, जो कि हमने माइलिन देखा लास्ट स्ट्रक्चर में। तो माइलिन सीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका क्या रोल होता है, आपका इंसुलेट करती है, जो कि आपके एक्सॉन को इंसुलेट करती है एंड इन द सीएनएस फॉर फास्टर सिग्नल। सीएनएस के अंदर जो आपका एक्सॉन होता है उसको इंसुलेट करती है ताकि जो सिग्नल है वो फास्ट तरीके से ट्रांसमिट हो पाए, कन्वे हो पाए। नेक्स्ट वन इज द एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल क्या होता है, लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन।
ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स उसको लाइन करती है, सेंट्रल कैनाल जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की उसको लाइन करती है, उसको फॉर्म करती है। अगला इसका रोल होता है कि फैसिलिटेट करती है आपके मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ सीएसएफ को, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट इज द न्यूरल्गिया ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। स्वन सेल्स, सिस्वेंस जो सेल्स होते हैं एंड जिनका क्या रोल होता है आपका, प्रोड्यूस माइलिन फॉर द एक्सॉन, एक्सॉन के लिए क्या करते हैं आपके माइलिन को प्रोड्यूस करते हैं पीएनएस में, नॉट सीएनएस में, राइट। देन सपोर्ट एक्सोनल रीजनरेशन, अब आपके पीएनएस में एक एक्सोनल रीजनरेट, वापस से जो एक्सोन उसको रीजनरेट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेल इज द सैटेलाइट सेल, सैटेलाइट सेल आपके सराउंडिंग होते हैं न्यूरॉन्स के पास, सराउंड न्यूरॉन सेल बॉडीज इन गैंग्लिया, गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरल सेल बॉडी होती है उसमें सराउंडिंग होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है रेगुलेट द माइक्रो एनवायरनमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, सॉरी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर जो भी आपका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो दैट्स इट, इट्स फॉर टुडे। देन I hope you understood this. If you have any queries, any doubt, you may ask, right? So now it's time to sum up. So यहाँ पर हमने देखा न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू के बारे में, व्हाट इज नर्वस टिश्यू, व्हाट इज द न्यूरॉन्स, टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, राइट। सो नर्वस टिश्यू एंड फंक्शन, नर्वस टिश्यू आपके एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, जो आपकी बॉडी का फंक्शन होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कन्वे करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो नर्वस टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेल्स नर्वस टिश्यू, इट्स इसके फंक्शन जो है आपके नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द टू प्राइमरी सेल से मिलकर बने, फर्स्ट है न्यूरॉन, सेकंड है न्यूरल गिया, न्यूरल गिया और न्यूरॉन्स। न्यूरल गिया को हम गिलियल सेल के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड इसका फंक्शन है आपका सेंसरी इनपुट, integration means process and motor output, right. And this is the structure of neurons. देन हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा न्यूरॉन सेल बॉडी एंड आपका डेंड्राइट्स, एक्सोन और सिनेप्स, टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एंटर न्यूरॉन। नाउ हमने आफ्टर हमने न्यूरल गिया के बारे में देखा, न्यूरल गिया इज द एक सपोर्ट, न्यूरल गिया द नॉन न्यूरल सेल दैट सपोर्ट द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट। अब न्यूरल गिया आपका सीएनएस में हमने देखा एस्ट्रोसाइट, माइक्रोगिलिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट और इपेंडाइमल सेल, राइट। देन पीएनएस में सीक्वेंस सेल्स और सैटेलाइट सेल, राइट। Hope you understood. If you have any doubt, any queries regarding this topic, you may ask or you can leave your comment so that we will give the answer, right. Thank you for watching this. Bye bye, have a good day.